और इजरायली सेना के साथ टीवी9 भारतवर्ष जो रिपोर्टिंग कर रहा है, हम आपको पल पल की जानकारी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक हम आपको ये बता रहे थे कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, हमास के इलाके में कर रही हैं, गाजा पट्टी में कर रही हैं। लेकिन अब टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर आप उस एक्शन को होता हुआ देख रहे हैं। इजराइल की फोर्स अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गाजा पट्टी के अंदर आ रही है। आईडीएफ के जवान सीमा से अंदर घुस रहे हैं और सुमित चौधरी वहां मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से दाखिल हुए हैं आईडीएफ के स्पेशल फोर्सेस के जवान और क्या कुछ वो कर रहे हैं गाजा पट्टी में। पट्टी में अगर आप देखें स्पेशल फोर्सेस अंदर जा रही है गाजा पट्टी के अंदर और यहाँ से लगातार ऑपरेशंस को चलाने के लिए। और हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के अंदर। देखिए ये कैमरा मेरा अगर घुमाएं और देखिए पहला ऐसा चैनल जो आपको गाजा पट्टी के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है। देखिए ये गाजा का इलाका है, आप देख रहे हो यहाँ से लगातार अटैक आ रहे हैं। इनको बोला गया है स्टैंड बाय रहने, यानी लगातार अपनी पोजीशन से हम यहाँ से लगातार रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात क्या है। जिनको काट कर अब अंदर घुसा जा रहा है, यहीं से ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। Is the special forces entered the Gaza border? We are in the Gaza. I know that we are in the Gaza. Just for them, did the special forces or the IDF have entered the Gaza? Not yet. We just entered to take some bodies of hostages that we found. These bodies near the border with Israel inside the Gaza Strip, but it was a very short entrance. We are here with 35 battalions, and we are ready for every contingency. And 35 battalions. And what about the tanks, and BMPs, the border, the heavy vehicles you have taken to this location? What is the numbers of that, if you can? I cannot say all the numbers, but I can tell you that we are ready to do everything that the decision makers will ask us to do. We are a democratic country, and we are here in order to restore the security perception and the security of the Israeli population. Is there any time frame when you complete this operation? Any time frame you have decided that, we have a time frame, we will decide? What is your mind when you are going inside the Gaza? We have a time frame for everything. We are going in every step of the operation, step by step, but I cannot tell this to the Hamas. And I hope that you complete your operations very soon, because you have a time frame in you. And what you have to say to world when you heard about so many things around the world regarding the Israeli people, especially the Lebanon border. We have listening from the other borders, Israeli borders. What do you have to say regarding all these things? Look, we are also in the Lebanon border, in the Israeli side. Hamas hope that Hezbollah will enter this war, but the international community from one side and the Republic of Lebanon from the other side, they are the one that has to tell Hezbollah that if they are entering the war, they are dragging all the Middle East to a bigger and bigger world. Thank you, Major Ronj, talking to us, and I hope that Indian masses will listen to you and they will come to know what exactly is going on in these areas. Thank you very much, Ronj. Okay. Major, thank you very much. Thank you. We have to go. Okay, thank you. तो देखिए किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम हर खतरे से निपटने को तैयार है, कहा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, तलाशी ली जा रही है, एक एक घर में जाकर तलाशी ली जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्सेस हैं ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, जो अब आगे बढ़ रही हैं। यानी पहले एयर एक्शन लिया गया और उसके बाद अब ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, जिसमें स्पेशल फोर्सेस हैं खास तौर पर, जो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पर कई बंधकों के शव मिले हैं, ये बड़ी जानकारी दी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। यानी आगे बढ़ते हुए इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई बंधकों के शव अब तक हासिल हो चुके हैं। और यही आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी, बताया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शव भी हो बंधकों के, और ऐसा जानकारी अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी दे रही हैं। ये बता रही हैं कि यहाँ पर कई बंधकों के शव हासिल हुए हैं, क्योंकि वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यानी जिस इलाके से हमास की तरफ से अटैक किया गया था, वहीं से अब आगे बढ़ रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस और स्पेशल फोर्स इसमें मौजूद है। साथ ही टीवी9 भारतवर्ष का कैमरा भी मौजूद है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं, हर खतरे को जांचते हुए परखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी भी इजरायली स्पेशल फोर्सेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और देखिए रिपोर्ट करते हुए कई बार आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए अगर आप देखें ये लाइव ग्रेनेड है, यहाँ पर जब हम रिपोर्ट कर रहे थे उसी समय ये लाइव ग्रेनेड हमको यहाँ मिला, जिसको स्पेशल फोर्सेस की टीम ने देख लिया है। अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा, हमको भी यहाँ से दूर जाने की इजाज़त बोला गया है। और अब देखिए रिपोर्टिंग के दौरान इस तरीके से लाइव बॉम्ब्स हमको मिल रहे हैं उन इलाकों से जहाँ पर इस समय स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ से स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट कर रही है। मोटे तौर पर जिस दिन से ये वॉर शुरू हुई है उसके हर दिन 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज़ बदलती रही हैं, और ये स्ट्रैटेजीज़ इसलिए बदल रही हैं ताकि स्पेशल फोर्सेस अपना काम आसानी से कर सके, यानी उन इलाकों में जाएँ गाज़ा के जहाँ पर हमास ने अपने बेस बना रखे हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में, उन्हीं रेजिडेंशियल एरियाज़ में घुसने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ये इलाके देख रहे हो, अब इनको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। और अभी ये लाइव बॉम्ब है जिसको मैं आपको दिखा रहा था कि ये ग्रेनेड है जो एक हमास के आतंकी के चेस्ट पे या फिर उसकी वेस्ट पे लगा हुआ था, जो यहाँ रह गया। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा और उसके बाद अब इसको हटाने की कोशिश चल रही है। यानी आप मानिए कि अभी भी इस इलाके में क्या दुविधा है, क्या परेशानी है फोर्सेस के लिए भी इजराइल की, वो ये कि इन इलाकों से आपको हटाना या फिर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए हमको दूर जाने के लिए कह दिया गया है, हालांकि क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। और चलिए मैं आपको एक बार फिर ये दिखाता हूँ कि कैसे निशांत आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी कैसे स्पेशल फोर्सेस की टीम जो है आगे की तरफ मूव कर रही है। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये है स्पेशल फोर्सेस की टीम जो यहाँ से मूव कर रही है इस समय, और ये टीम अब गाज़ा के उन इलाकों में जा रही है जहाँ पर आप लगातार आपने ऑपरेशंस के बारे में देखा होगा। और देखिए ये पूरी टीम जो है स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय अब गाज़ा के उन इलाकों में घुस रही है और हम उस टीम के साथ मौजूद हैं, यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है और लगातार आपको रिपोर्ट कर कर यहाँ से दिखा रहा है। महत्वपूर्ण आप जानिए कि आप अगर इनके हाथ में राइफल्स देखिए, आपके नाइट विजन कैमराज देखिए, इनके पास जो इनके इक्विपमेंट है वो देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन रात कैसे ऑपरेशन चलाने के लिए काबिल है। यानी ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो आपको ऐसे अर्बन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। और अभी इस टीम के साथ हम मौजूद हैं। देखिए ये RPGs हैं जिनको फायर किया गया था, और अभी इस वॉर जोन्स के अंदर हम आपको हर पल की जानकारी दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय का क्या सिनेरियो है।